Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Very good morning, everybody. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Who took the first lecture? Sir, Tejaswita ma'am. Jaswita ma'am. What was the strength? Sir, 14. 14. 14. Okay. Yes, sir. 9 are yet there in the class. Let's just wait for a few minutes and then we'll be starting the class, okay? Last time we had a discussion about the strategies of the positioning. Clear? Yes, sir. Okay. Okay, so I told you like last time we were about to discuss with another topic, repositioning, Yes, sir. Yes, which sir. we'll be discussing today. And then probably this unit will be finished. This unit unit second, wherein we have complete discussion about segmentation, targeting, and positioning. Am I clear? So Yes, sir. segmentation and targeting is something which we have already discussed, and in positioning, the only topic which is left is repositioning, which we will be discussing today. Clear? Yes, Yes, sir. So 11 Yes, students sir. are yet here. I'm waiting for next 2 minutes and then I'll be starting the discussion. Clear? I've opened up my presentation on one side. Once the student strength is good, I'll be showing the PPT presentation to you. It's better if the students can keep their video on so that it remains in front of me. Okay, so total 12 students right now. Okay, I think I should start discussing. आज पायल ने अपनी लोकेशन चेंज कर लिया बैठने की. Right, okay. Just give me one moment. I'm also finding an advertisement to show you people today related to a very common term जो कि finance के students ज़्यादातर पढ़ते हैं. Okay, I think I should start discussing. Rest student can join with time, right? आप लोगों को याद होगा कि last time हम लोग positioning के बारे में बात कर रहे थे, and then I told you कि कहीं ना कहीं आप जब भी बात करते हैं positioning की, तो it's about framing an image about your product or a brand in the mind of your customers. So हम लोगों ने last time काफी सारे points पे discussion भी किया था कि there are so many strategies on the basis of which we can position our products image in the customer's mind. Be it either in terms of by its image, its logo, its tagline, its size, its product type, right? Its growth in market. ऐसे काफी सारे features हो सकते हैं, ऐसे काफी सारे factors हो सकते हैं जिसके basis पे हम लोग position करते हैं हमारे product को market में, right? Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. राइट तो सिमिलरली आज हम लोगों को आप लोगों ने काफी बार सुना भी कि मैंने काफी बार डिस्कशन में ये चीज बोली है कि एक फेयर एंड लवली का आज का कैंपेन बहुत ज्यादा कॉमनली चल रहा है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि उस दिन हमारा राजेंद्र नगर में ही एक नया कॉन्सेप्ट हमें मिल गया सेम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कि लाइक राजेंद्र नगर इज बिकमिंग नरेश नगर बिकॉज वी हैव गॉट वन अनदर आउटलेट गेटिंग ओपन। राइट ओके सो यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूँ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने के बाद वो कॉन्सेप्ट है रीपोजिशनिंग। राइट एक बार हमने पोजीशनिंग कर दी है, आपने सुना था, आप लोगों ने समझा था कि कितना टिपिकल है, कितना टफ है कस्टमर के माइंड में सेम तरह से हमारे प्रोडक्ट की इमेज को फ्रेम करना जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमारे माइंड में। क्लियर राइट जैसे कि मैंने आपको उस दिन वाला एग्जांपल भी बताया था कि सारे के सारे जो हैंड वॉश आ रहे थे वो हर जगह ये दिखा रहे थे लोगों को कि कोरोना से बचने के लिए आपको समय समय पे हाथ धोते रहना जरूरी है। ठीक है उसी तरफ हम दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स पे WHO की गाइडलाइंस भी सुनते थे। WHO की गाइडलाइंस क्या सुनते थे कि WHO बोल रहा है कि आपको समय समय पे साबुन से हाथ धोते रहना जरूरी है, यही तो हो रहा था। राइट तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, आपने देखा कि जब सारे के सारे हैंड वॉश जो कंपनीज थी उन्होंने सबने यही कहना शुरू कर दिया कि आप समय समय पे हैंड वॉश करें, हाथ धोएं, राइट अपने आप को क्लीन रखें, सैनिटाइज रखें। तो एक कंपनी ऐसी भी आई जो कि सोप लेके आई इस चीज का और उन्होंने इसी बात को टारगेट करते हुए कहा कि आप अगर हैंड वॉश से हाथ धो रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। हैंड वॉश आपको इतनी क्लीनलीनेस नहीं दे सकता जितना कि एक सोप दे सकता है। राइट और उन्होंने इसी बात को टारगेट किया, पिंच किया कि डॉक्टर्स ने या सारे के सारे जो WHO एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये बात बोली है कि आपको साबुन से हाथ धोने हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको हैंड वॉश से हाथ धोने हैं, जबकि इट इज ऑल वेग पोजिशनिंग। आप समझने की कोशिश करो, हैंड वॉश से हाथ धोना या सोप से हाथ धोना इज लाइक दोनों कॉमन चीजें हैं। सोप लिक्विड फॉर्म में हैंड वॉश है, राइट एंड एक प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में वो सोप है। क्लियर बट स्टिल वो एक बात थी क्योंकि अल्टीमेटली देखिए परसेप्शन है ना। हम जरा सी भी चीज पे क्या होता है, आप देखो अगर डॉक्टर आपकी बीमारी में आपसे जरा सी कोई बात कह देता है कि आपको ये ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए तो आप कॉशियस हो जाते हो। क्यों हो जाते हैं कॉशियस? क्योंकि आपको लगता है कि उस समय आपका परसेप्शन ऐसा होता है कि जो डॉक्टर बोल रहा है वो मेरे लिए ठीक है। राइट इसलिए आप उस चीज को एग्री करते हो चाहे वो आपके काम की हो या नहीं हो। क्लियर मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगा अपना, जैसे ऑन 3rd और 4th ऑफ जनवरी मैं आप लोगों की क्लास में क्लास ले रहा था, आपको इंसिडेंट मालूम भी होगा ये वाला, एंड ऑलमोस्ट माय हार्ट स्टार्टेड थ्रॉबिंग। तो इवनिंग में व्हेन आई वेंट टू डॉक्टर तो डॉक्टर सजेस्टेड मी दैट यू शुड गेट एडमिटेड। So immediately I went to Gangashil and I got admitted there in ICU. ठीक है so what was the moment? वो moment एक ऐसा था when I was not feeling really well inside, तो my family members were thinking whatever is possible we should give him the treatment. Right तो डॉक्टर ने जो भी बोला हमने तुरंत एग्री कर लिया, परसेप्शन हमारा वो था। उसी तरीके से मार्केट में चीज होती है कि हमारे माइंड में जो चीज है उसको हमने कस्टमर से जब एग्री कराना है तो देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर जो उसके परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए टारगेटिंग करना, पोजीशनिंग करना इतना आसान नहीं है। फाइन अब बात आती है अगर हमने इतनी मेहनत से पोजीशनिंग कर भी दी तो व्हाट बिकम्स द रीजन कि हमें रीपोजीशनिंग करने की जरूरत पड़े, क्योंकि इसके नाम से ही क्या समझ में आता है हमें, पोजीशनिंग और उसके बाद रीपोजीशनिंग। तो जहां पे प्रीफिक्स में री लग गया है उसका मतलब क्या है? Again. सॉरी So again. यस वेरी गुड अगेन एंड सर रिवर्स। किसी चीज को दोबारा करना, रिवर्स तो नहीं, रिवर्स का मतलब तो हो गया उसको टेक बैक करना, राइट यहाँ पे प्रॉपर्ली अगेन। आप देखो ना एक वर्ड होता है रिसर्च, राइट रिसर्च का मतलब क्या होता है? आपने सर्च किया, आपने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद उस पर दोबारा से कुछ सर्च किया, दैट इज रिसर्च। क्लियर आप देखते हो ना, मैंने उस दिन आप लोगों से पूछा था कि PhD क्या होती है, तो किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया था सर फिलोसॉफिकल डॉक्टरेट डिग्री होती है। तो उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है? उसमें आपसे रिसर्च कराई जाती है। रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी टॉपिक पे किसी व्यक्ति ने, यानी कि फिलिप कॉटलर है। फिलिप कॉटलर कौन है? फादर ऑफ मार्केटिंग। यस स्मृति राइट, फादर ऑफ मार्केटिंग। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मार्केटिंग के फादर का नाम है फिलिप कॉटलर, जिन्होंने मार्केटिंग का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। अब आप देखो कि जो फिलिप कॉटलर है उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पूरी की पूरी सर्च कर रखी है और उन्होंने एक बुक भी लिख दी उस चीज पर। तो क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट की वही बुक चलती रहेगी कंटिन्यूअस या उसमें कुछ अपग्रेडेशंस भी होंगे?
अपग्रेडेशन होंगे। अपग्रेडेशंस होंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने, एक स्कॉलर ने तो उस पर सर्च करी, लेकिन आगे चल के उसी कॉन्सेप्ट में क्या नया आ रहा है, क्या इनोवेटिव हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स को क्या नया पढ़ने की जरूरत है, उस पर दोबारा से सर्च की जाती है। वो कोई और दूसरा पीएचडी स्कॉलर करता है, तभी तो उसकी पीएचडी पॉसिबल होती है। यस सर। कि उसने उस कॉन्सेप्ट में कुछ नया निकाला। पीएचडी का मतलब ही यही है कि आपकी डॉक्टरेट डिग्री तब कंप्लीट मानी जाएगी जब आपने किसी कॉन्सेप्ट में कुछ नया सर्च करके दिया है जो अभी तक किसी को नहीं मालूम था, तभी आपकी थीसिस पॉसिबल होती है। Am I clear? और आप 5 साल में मात्र इतना ही काम करते हो, और उसी बेसिस पे जो आने वाले लोग होते हैं वो बुक्स में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जो आप लेके आते हो एज अ पीएचडी स्कॉलर। क्लियर? तो सेम चीज है कि यहाँ पे हमने पोजीशनिंग करी, अब रीपोजिशनिंग करने की बात है, यानी कि हम पोजीशनिंग दोबारा करेंगे। दोबारा क्यों करेंगे? देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें पोजीशनिंग दोबारा करनी पड़ सकती है। डू यू एग्री विद दैट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. What can be the reasons or any practical example if you have in mind other than Fair and Lovely? आपके दिमाग में देखो, आपके दिमाग में फेयर एंड लवली की वजह से एक हिंट है कि फेयर एंड लवली ने क्यों रीपोजिशनिंग करना शुरू करी। उसी से कोरिलेट करके मार्केट में ऑब्जर्व करो, ध्यान करो, और मुझे बताओ कि किन किन कंपनी ने रीपोजिशनिंग करने की जरूरत समझी है और की है, और क्या रीजन था। सर मैगी ने की है, मैगी ने मैगी ने की है सर, एक मैगडी ने भी की है सर, बीच में जो फ्रॉड निकल गया था मैगडी में भी। एग्जैक्टली राइट, मैगडी ने भी की थी जब बीच में फ्रॉड आया था। सर केएफसी ने की है, वेरी गुड, राइट। एंड और किस किसने की है? और किस किसने की है? सर घड़ी ने भी करी है। घड़ी ने किस समय पे करी है और क्या रीजन था? सर जब वो उसका वो आया था कि हाँ उसमें मतलब एक्स्ट्रा केमिकल्स हो गए थे, जब लोगों के हाथ खराब हो रहे थे तो उसको और न्यू तरीके से उन्होंने। ओके, राइट। एंड एनी अदर वन? एनी अदर स्टूडेंट? Am I audible? Yes, sir. Yes. ये मैंने नहीं बोला है, अगर आपको आवाज आई है तो। ओके, मैं आपको बता दूं, फाइन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहले आपको सबको मालूम है हीरो होंडा कंपनी एक थी। Yes, sir. यस सर, यस सर। आपको ये भी पता लगा कि हीरो होंडा, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, जो हीरो होंडा एक कंपनी थी। अकाउंट्स पढ़ते हैं आप? कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? Yes, sir. कंपनी अकाउंट्स में आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सीख ली? नो सर। No, sir. अभी तक आप एक कंपनी की बैलेंस शीट बनाते थे, राइट? Yes, जब sir. दो कंपनी एक साथ काम कर रही हैं तो उनकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये आप सीखोगे कंपनी अकाउंट्स में, अभी आपको रितेश सर सिखाएंगे जब भी पढ़ाएंगे तब, ठीक है? ये किस केसेस में होता है? जब किसी दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर हो गया, राइट? जब किसी दो कंपनी का अमलगमेशन हो गया। अमलगमेशन जानते हैं क्या होता है? सर मर्जर। हाँ, काइंड ऑफ मर्जर, राइट? या एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी, राइट? ऐसे केसेस में कंपनी रीबिल्ड होती है। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप कंपनी अकाउंट्स पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे तब आपको क्लियर हो जाएंगी कि अमलगमेशन क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। क्लियर है? उसी तरीके से जब मर्जर होता है तो दो कंपनी एक होती हैं। इसी तरीके से क्या होता है? टेक ओवर होता है। टेक ओवर में क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। और एक होता है कि एक होल्डिंग कंपनी है और दूसरी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो ऐसे कंपनी के केसेस में क्या होगा? दोनों कंपनी की बैलेंस शीट एक ही साथ बनेगी। Yes, sir. उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि ए के सारी चीजों का पूरा लेखा जोखा बी के सारे लेखा जोखों को एक साथ लिखना है हमें, तो उसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एम आई क्लियर? Yes, sir. राइट। Yes, sir. सबसे वाली बात ये है कि जहां मर्जर हुआ है वहां किसी समय किसी केसेस में ये भी हो सकता है कि वो कंपनी आपस में अलग हो जाए, राइट? तो सेम था केस हीरो होंडा के साथ। पहले हीरो होंडा एक थी, राइट? आपको याद होगा इनका एक कैंपेन आता था, देश की धड़कन। Yes, sir. Yes, sir. और उस समय कंपनी जो थी एक हुआ करती थी। सब हम लोगों को मालूम था कि कंपनी का लोगो भी था, हीरो ऊपर लिखा रहता था, होंडा नीचे लिखा रहता था। हीरो होंडा एक नाम से कंपनी की सारी व्हीकल्स आते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया जिसमें से हीरो अलग हो गई और होंडा अलग हो गई। जो हमारी एक्टिवा है आज की डेट में, वो एक्टिवा किस कंपनी की है?
होंडा। होंडा। होंडा की, राइट। और हीरो की अपनी बाइक्स अलग आती हैं, Yes. आती हैं। अब ऐसे Yes, केस sir. में जहां सब लोग स्टार्टिंग से ही कंपनी को एक मानते थे, हीरो होंडा, राइट। ऐसे केस में अब आज की डेट में क्या जरूरत पड़ गई, आज की डेट में जरूरत ये पड़ने लगी कि सबको, सारी दोनों कंपनीज को अपने कस्टमर को बताना भी था कि अब हम अलग हो चुके हैं, हीरो अलग है, होंडा अलग है, और हमारे प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन है, मेरे प्रोडक्ट्स ये हैं, आपके प्रोडक्ट्स ये हैं, ये भी उनको एडवर्टाइज करना था। तो क्या करने की जरूरत पड़ी, तो हीरो होंडा कंपनी ने अलग अलग होकर के होंडा को इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बेसिस पर एडवर्टाइज किया, और हीरो ने अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बेसिस पे पोजीशन किया है। Am I clear? समझ में आती है चीज? Yes, sir. एग्जांपल इज क्लियर, Yes, sir. कहने का मतलब क्या था, पहले उन्होंने पोजीशनिंग की थी जब वो एक कंपनी थी, तब कस्टमर के माइंड में ये इमेज जगाने के लिए कि हीरो होंडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ये प्रोडक्ट्स आते हैं। बट जब वो दोनों कंपनी अलग हो गई तो लोग एक कंपनी ना माने, इसलिए उन्हें रीपोजिशन करना पड़ा मार्केट में, अपने कस्टमर के माइंड में एक दूसरी इमेज जनरेट करने के लिए कि ठीक है ये कंपनीज दो, एक कंपनी नहीं है, नाउ दे आर टू सेपरेट कंपनीज। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आजकल एक बड़ा कॉमन एग्जांपल चल रहा है मार्केट में, वो है वोडाफोन और आइडिया, Idea. Yes, Idea. राइट। Yes, sir. उससे मिलके बन गया वी, we. ठीक है। Yes, तो sir. आप देख रहे हो कि पोजीशनिंग में अब तक वोडाफोन ने अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बेसिस पे, उनका जो लोगो आता है ना, ग्रे कलर का सर्किल है, फिर उसके अंदर एक चैट आइकन है रेड कलर Yes, का, sir. Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो वोडाफोन ने पहले अपने आप को उससे एडवर्टाइज किया, और आइडिया ने अपने येलो कलर का आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, यही उनका कैंपेन था। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, उन्होंने sir. अपने आप को उस तरह से पोजीशन किया। लेकिन आज की डेट में जब दो कंपनी ने हाथ मिला लिया है, मर्जर हुआ है उनका, तो वो तीसरा सिम लेके आए हैं, उसका नाम है वी, जहां पे वो गीगाबाइट्स में इंटरनेट की स्पीड का दावा कर रहे हैं, राइट। हम लोगों को स्पीड कैसी मिलती है, केबी मिलती थी पहले, अब एमबी Yes, sir. मिलने लग गई है। अब वो बात करें जीबी की, गीगाबाइट्स पर सेकंड, राइट। एक टाइम आएगा जब बात करेंगे लोग नैनोबाइट्स पर सेकंड, मतलब इंटरनेट शायद मोबाइल खोल जैसे आप स्विच ऑन किया, आपने इंटरनेट चल गया आपका, कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, राइट। फाइल क्लिक करने से पहले खुल जाएगी, ऐसा भी इंटरनेट स्पीड होगी शायद, ठीक है। तो गीगाबाइट्स पर सेकंड का मतलब क्या है, उन्होंने क्या करने की कोशिश करी है कि वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनी होकर उन्होंने पोजीशनिंग की थी, अब रीपोजीशनिंग कर रहे हैं एक होकर के, वी नाम से। Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. इसी पे अब तीसरा एग्जांपल मैं आपको कोड करके बताता हूँ। एक टाइम था जब म्यूचुअल फंड्स के ऐड आते थे टीवी पे, आते थे, Yes, राइट। और sir. म्यूचुअल फंड Yes, के sir. ऐड पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि बड़े टिपिकल से ऐड होते थे, बड़ा मार्केट रिलेटेड बात करते थे, रिस्क रिलेटेड बात करते थे। ऊपर से अब देखो, इंटरनेट स्पीड का मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं कुछ बोलूंगा शायद आपको थोड़ा सा वहां पे हारमोनियम प्ले हो जाएगा, इंटरनेट का कुछ भी कह सकते हैं, अगर ध्यान से सुनाई दे जाए बहुत अच्छी बात है। तो उस समय जब कैंपेन आया करते थे, जैसे ही ऐड खत्म होता था, उसमें एक बंदा बोलता था, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ऐसे करके बोलता था, बहुत तेज तेज, Yes, राइट। sir. आधे लोगों Yes, को तो sir. समझ में नहीं आती थी ये हुआ क्या, राइट। आई लिटरली बता रहा हूँ, इसी रीजन से इस कंपनी पे जो म्यूचुअल फंड्स की एड बनाती थी उस पे केस हो गया, राइट। क्यों केस हुआ, कंज्यूमर फोरम्स की तरफ से ये केस किया गया म्यूचुअल फंड के इस एड बनाने वाली कंपनी को। उन्होंने कहा जो सबसे मुद्दे की बात है, आप उसको इतनी स्पीड में बोलते चले जा रहे हो सेकंड्स में, ताकि किसी को समझ में ना आए और लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर लें, इन्वेस्ट कर लें। समझ रहे हो आप मेरी बात, यस सुनो। Yes, sir. सर तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। अल्टीमेटली देखो, उस समय पे क्या होता था, आप देखो, आपने देखा होगा जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, जहां भी टर्म्स एंड कंडीशन की बात आती है, वहां छोटा सा स्टार लगा के कोने में लिखा होता है, राइट। Yes, sir. ये क्या Yes, होता है, sir. हमने अपनी तरफ से लिखा है, कस्टमर ने नहीं देखा, राइट। दिस इज अबाउट प्लेइंग विद द कस्टमर्स परसेप्शन। ये वो तरीका है जिससे आप कस्टमर के माइंड के साथ, उसके परसेप्शन के साथ खेलते हो, है ना। कि आपने क्या किया, लिखा 80% ऑफ बड़ा बड़ा, और उसमें स्टार लगा दिया छोटा सा, और साइड में लिख दिया नियम व शर्तें लागू या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बिल्कुल कोने में फ्लेक्स के, जहां दिखेगा भी नहीं, शायद वो मुड़ने में पीछे चला गया, है ना, फ्लेक्स लगने के, तो किसी को नहीं दिखा। लेकिन उस स्टार लगाने से आप बच गए। जो एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल है, मैं दोबारा नाम ले रहा हूं, एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल है, वो आप पे क्लेम नहीं कर सकता कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को आधा अधूरा बताया है आपके कस्टमर को। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने लास्ट ईयर खंडेलवाल कॉलेज का एक एड बनाया,
मुझे लिटरली यकीन नहीं हुआ, मैंने न्यूज़पेपर के एड्स पे जब काम करना शुरू करा तो मुझे एक बॉडी के बारे में एक्चुअली नॉलेज हुई। वो यही बॉडी थी एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल, जो बहुत ही एक्टिवली काम करती है। नॉर्मली हम न्यूज़पेपर में क्या देखते हैं, तमाम एड्स आते हैं, राइट? Yes, sir. अगर आप एक दिन का न्यूज़पेपर उठाएंगे तो कम से कम उसमें 100 एड्स मिनिमम है, Yes. होंगे ही होंगे। Yes, sir. 100 एड्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं कभी? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. उसमें क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, कभी हमने उस पर गौर किया? नो sir. सर। No, sir. लेकिन एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल, अगर दिन के 6 अखबार छप रहे हैं और उसमें एक अखबार में 100 से ज्यादा ऐड है, तो 6 अखबारों के पूरे 1000 ऐड को एक एक करके चेक करती है, और चेक करती है कि कस्टमर को कोई गलत इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही है, राइट? तो जब मैंने लास्ट ईयर न्यूज़पेपर का जो मेन पेज ऐड होता है, जो सबसे फ्रंट में रहता है, उसका एक ऐड प्रिपेयर किया था खंडेलवाल कॉलेज का, तो उसमें मैंने लिखा अवॉर्डेड एज बेस्ट कॉलेज फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्लेसमेंट्स, जो हमें 2019 में मिला भी था, राइट? वो मैंने लिख दिया वहां पे, which is ultimately good to create the college image in the mind of the students, right? हम भी Yes, पब्लिसिटी पे काम कर रहे थे ना कि कॉलेज किस लिए जाना जाता है। तो हमारे पास जिस दिन न्यूज़पेपर में ऐड गया है, उसके 4 दिन के बाद तुरंत मेल आ गया एडवर्टाइजिंग काउंसिल का कि आपका कॉलेज क्लेम कर रहा है अपने आप को एज अ बेस्ट कॉलेज फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्लेसमेंट। इसका रेफरेंस क्या है, आपने किस बेसिस पे लिखा है इसको? आप कस्टमर को फ्रॉडुलेंट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं? तो उस पर्टिकुलर मेल का एक मुझे ट्रेल मेल भेजना पड़ा उनको, उसी में रिवर्ट करके लिखना पड़ा कि हमारे पास ये पर्टिकुलर हमारा अवार्ड है, इसकी इमेज ये लगी हुई है आपके सामने, ये इवेंट हुआ था दिल्ली में, इस डेट पे हुआ था, इस डेट पे ये पर्टिकुलर ऐड आया था। तो उन्होंने हमें लिख करके भेजा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये टाइटल लिखें, प्लीज ऑल्सो मेंशन दी रेफरेंस कि कहाँ मिला आपको ये अवार्ड। अब आप समझ रहे हो, कहने का Yes, मतलब sir. है कि ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल बिल्कुल एड के तह तक पहुंच गया कि एक भी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक गलत जानी नहीं चाहिए। अब आप देखो, ये लाइन हम मात्र पढ़ लेंगे, हम इस पे इतना गौर नहीं करेंगे, लेकिन एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने उस पे ये बात निकालकर हमें भेजी। क्लियर है? तो कस्टमर Yes, से sir. रिलेटेड बात नहीं है, इसलिए हमने उसको रीपोजिशनिंग में नहीं लेके आएंगे कभी भी। लेकिन हाँ, रीपोजिशनिंग कहाँ हुई मैं वो भी बताता हूँ आपको खंडेलवाल कॉलेज की। अगर मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करते हैं, एक काम करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ आपको गूगल पर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इमेज सेक्शन में आ जाता हूं मैं, उसके बाद मैं ओपन करूंगा, राइट? गिव मी 1 मोमेंट। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि रीपोजिशनिंग कहां हुई आपके कॉलेज में, खंडेलवाल कॉलेज में। एंड आई एम लकी इनफ कि जो रीपोजिशनिंग हुई है वो मेरे हाथ से हुई है, राइट? एंड समथिंग गॉट चेंज विद इन 20 years ऑफ खंडेलवाल कॉलेज बिकॉज ऑफ मी। ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes. ये लोगो देख रहे हो आप? Not visible. Yes, sir. नाउ विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. लोगो आपने बहुत बार देखा है, Yes, sir. Yes, sir. Sir. लेकिन जब से आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, क्या आपने ये लोगो देखा है जनरली, या इसकी जगह कोई दूसरा लोगो है? सर यही है। Sir, यही यही देखा है। यही देखा है? Yes, या इसमें sir. कुछ चेंजेस sir. देखे हैं? अभी मैं दिखाऊंगा तभी याद आ जाएगा। ठीक है? अभी 6 महीने से कॉलेज नहीं गए ना, इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये वो लोगो है अच्छा। जो बिल्कुल 20 सालों से चलता आ रहा है। ठीक है? अब विनय सर का कंसर्न ये था, उन्होंने काफी टाइम 18 साल 17 साल उन्होंने मार्केट में ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि उनके रिलेटिव हैं देवेंद्र खंडेलवाल सर, जिनका किप्स है, Hmm. किप्स मिठाई वालों की दुकान है बरेली में, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट? ऐसे ही खंडेलवाल कॉलेज है। अब जो Sir. केसीएमटी का के बना हुआ है, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा किप्स का लोगो है Kips का उसमें है। बना है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ऐसे ही ओवल शेप में बना हुआ है। Yes. Yes, Yes, sir. तो sir. विनय सर का कहना ये था कि ज्यादातर लोग किप्स को और केसीएमटी को एक समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जिनका किप्स है उन्हीं का केसीएमटी है,
सर बात तो सही है, पहले मैं भी समझता मैं तो अब तक यही समझता था। है ना? देखो यही समझता था। क्लियर आ गई यहाँ पे, ये चीज सबको क्लियर हुई है ना? देखो विनय सर भी खंडेलवाल है, जो जिनका किप्स है वो भी खंडेलवाल है, और कहीं ना कहीं ये चीज कोइंसिडेंस में आई कि उनका जो लोगो बना वो भी ओवल में बना, इनका बना वो भी ओवल में बना, उनके में भी के ऐसा किंग वाला यूज हो गया, इनके में भी सेम फॉन्ट में यूज हो गया। अब 18 साल से सब लोग यही समझ रहे हैं किप्स एंड केसीएमटी आर वन आइडेंटिटी। क्लियर है? Yes. Yes, sir. राइट। अच्छा दूसरी चीज क्या है, इस Yes, पर्टिकुलर sir. लोगो को देखकर लोग खंडेलवाल कॉलेज नहीं समझते थे, उनको लगता है खंडेलवाल कॉलेज अलग है, केसीएमटी अलग है। राइट। कुछ लोगों को एब्रीविएशन क्लियर नहीं था, जैसे आज की डेट में गुलाब राय मोंटेसरी कोई नहीं जानता, जनरली लोग जानते हैं जीआरएम। जीआरएम के नेम से। जीआरएम यस सर। स्कूल है, तो क्यों है GRM ऐसा लोगों के माइंड में, क्यों है? क्योंकि जीआरएम ने हमेशा से शुरुआत से ही अपने आप को जीआरएम ही लिखा है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है? इसलिए आप हमेशा उनको जीआरएम जानते हो, इवन उनके गेट तक पे जाओगे तो वहां भी जीआरएम ही लिखा हुआ है। GRM. Yes, sir. जीआरएम में लिखा है। बड़ा सर जो जैसे पूरा नाम है, बीबीएल फुल भी है। नेम है कॉलेज का, वो आपको नॉर्मली कॉलेज में एंटर करने के बाद या ऊपर बोर्ड पे लिखेगा। Yes. क्लियर है? ऐसे ही लोग खंडेलवाल कॉलेज को Yes, इजीली sir. केसीएमटी से connect करते थे। तो विनय सर के ये दो कंसर्न थे जो उन्होंने एक बार मेरे से डिस्कस किए कि मुकुल, एक तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि लोग खंडेलवाल कॉलेज को, केसीएमटी को एक जाने, पहली चीज, और दूसरी चीज आई वांट टू चेंज दिस के, मैं इस फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ सो दैट पीपल शुड नॉट एनी मोर रिलेट केसीएमटी एंड किप्स टुगेदर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, मुझे लगता sir. है कि देखो खंडेलवाल कॉलेज में पढ़ के पोजीशनिंग और रीपोजीशनिंग में इससे बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता जो आपके कॉलेज से ही रिलेटेड है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो फाइन। तो उसी जगह पे मैं Yes, समझ कुछ चेंजेस हुए और वी बिकेम दिस। लोगो वही पुराना वाला है जो साइड में ऐड हो गया और के बदल गया, के बिकेम सिंपल, राइट? केसीएमटी sir. लिख गया इटैलिक्स में, and we normally wrote and added one more term which was an education brand. इस लोगो में बहुत मॉडिफिकेशंस हुए to be very honest, right? जिस समय इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही थी, even we tried organizing a competition among students. हमने कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करी स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि स्टूडेंट्स हमें चॉइसेस दें कि कैसा लोगो बन सकता है और डिफरेंट। इनमें हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशन किए। आई थिंक आज की डेट में जो फाइनल लोगो चल रहा है वो कम से कम 20 लोगो बदलने के बाद आया होगा चेंज में, राइट? मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो लोगो भी अभी सर्च रिजल्ट में मिल जाए मुझे कहीं पे। I'll do one thing, मैं केसीएमटी का फेसबुक पेज खोल देता हूँ, वहां आपको वो लोगो दिख जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है। इंटरनेट अभी भी हमारे पास वो केबीएमबी वाला ही चल रहा है, सो डोंट थिंक कि गीगाबाइट वाली स्पीड मिल रही है अभी हमें। सर अभी वी यूज करना स्टार्ट नहीं किया है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। It's just getting open. एक लोगो तो आपको इस पेज की डीपी पे दिख रहा है, कॉर्नर में आप देख Yes, सकते हो, sir. विच इज सेकंड लास्ट वर्जन। ये सेकंड लास्ट वर्जन है, लास्ट जो है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? जो इस बार के स्टूडेंट्स आए ना, Yes, उनके sir. बैग पे पूरी ब्रांडिंग हो रखी है। आप लोग पता है जो बैग आपके Yes, पास है sir. केसीएमटी का ब्लैक एंड रेड कलर का, ठीक है, Yes, sir. उस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी बना सर हुआ है, शायद वो इस पूरी बार मेरी रेड डिजाइनिंग रही एंड है। व्हाइट है। राइट, रेड एंड व्हाइट वो पूरी मेरी डिजाइनिंग रही है, बैग पे भी इवन। एंड अब जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उस पे भी जो उनको बैग मिल रहा है, उसमें भी जो पूरा फ्रंट में डिजाइन बना हुआ है, वो भी पूरी मेरी डिजाइनिंग है। इस बार मैंने उसमें कुछ एड ऑन्स किए हैं। आपने देखा ना केसीएमटी का बैग बच्चे जनरली लेके काफी जगह लेके जाते हैं, जाते हैं। Yes, sir. तो इससे फायदा क्या होता है, एक लोगों तक मैसेज Yes, पहुंचता है, sir. राइट? इसीलिए उस मैसेज को बढ़ाने के लिए, बेटर तरीके से एडवर्टाइज करने के लिए मैंने इस बार का डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो डिजाइन दिखा दूं इस बार आप लोगों को? पहले से आप लोगों को ऐसे तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे दिखा Yes, दूंगा। sir. Yes, sir. अभी दिखा Yes, दूंगा। sir. चलो पहले Yes, लोगो sir. देख लेते हैं, पहले लोगो देख लेते हैं कि लोगो में फाइनल चेंजेस क्या हुए, ठीक है? इंटरनेट बहुत तेज है। ओके, आप देख सकते हो जो टॉप पे लोगो लगा हुआ है, दिस इज द फाइनल लोगो एज ऑन डेट। लाइक आप देख पा रहे हो, इसमें पुराना वाला लोगो है अंदर,
हमने 3 टर्म्स को ऐड किया, ड्रीम, अचीव, इंस्पायर। हम हमेशा KCMT के बारे में एक लाइन लिखते थे, KCMT इज द प्लेस वेयर ड्रीम्स आर बोर्न, अचीवर्स आर मेड एंड इंस्पिरेशंस आर गिवन। तो उसी से हमने रिलेटेड लिखा यहाँ पे ड्रीम, अचीव, इंस्पायर। पहली बात एक तो ये हो गया। KCMT आ गया, के फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। लोग विनय सर चाहते थे कि KCMT और खंडेलवाल कॉलेज लोग एक ही समझे, तो वही लोगों में KCMT ऊपर, नीचे खंडेलवाल कॉलेज लिख गया छोटा छोटा, right? And we wanted people to say it as a top education brand, so that is also written there. So this is the complete logo now, जिससे हमारे वो जो 3 positioning problems थे, challenges थे, लोगों के माइंड में थे, वो बदल जाएं। इस लोगो को देखकर लोग के से किप्स को रिलेट नहीं करते हैं, आप भी नहीं करोगे इनफैक्ट। लेकिन पुराना लोगो देख के 2-3 स्टूडेंट ने बोला कि नहीं सर, मैं भी यही समझता था कि किप्स और KCMT एक ही है। Am I clear? Yes, sir. अगर ऐसा होता तो हर फंक्शन में किप्स की मिठाई होती ना। ठीक है, अभी एक तो मैंने लोगो से आपको रिपोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट दिखा दिया, ठीक है। अभी मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगा एक बार स्क्रीन को, और मैं वो डिजाइन तब तक ओपन कर लेता हूं जहां पे मैंने जो नया बैग आया है उसका डिजाइन क्रिएट किया है, ठीक है। आप लोगों में से किसी के पास KCMT का बैग रखा है इस समय पे? Yes, sir. उस पे देखिए ऊपर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल बैग के फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बताइए? KCMT. I am a proud KCMTian. राइट, ये लिखा हुआ है ना। फाइन, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपको, मैं दिखा रहा हूँ कि नए बैग्स के डिजाइन पे क्या लिखा हुआ है। नाउ सी दिस लोगो, राइट, खंडेलवाल कॉलेज पूरा नाम लिखा हुआ है। और इस बार हमने 4 अपने मेन फीचर्स को हाईलाइट किया, दैट वी हैव मोर देन 27 प्लस कोर्सेज, we have 3 campuses, we have 3000 plus students जो अभी करंट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बार इतना बैच आता ही आता है, 3000 नए बच्चे होते ही होते हैं, राइट। और 20,000 प्लस एल्यूमिनाई, यानी कि 20,000 से भी ज्यादा पास आउट स्टूडेंट्स हैं KCMT के 20 सालों में। तो आप समझो कि ऊपर की बात से ज्यादा ये जो 4 ब्लॉक में कंटेंट लिखा है, ये किसी के माइंड में कितनी स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करेगा। क्लियर है? ये दिखा दिया नए बैग्स पे जो डिजाइन। अब नए बैग्स का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है नए बैग्स का। उसमें इतनी स्पेस थी हमारे पास कि इतना बड़ा हम डिजाइन इजीली रखवा सकते थे, तो उसमें ये सब छप के आया है, पूरी वेबसाइट आई है। कोई भी बंदा देख रहा है, किसी को कॉलेज के बारे में जानना है, वो वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में देखो, आपको मैंने बताया था डिजिटल मीडिया आ रहा है, तो लोग ऑफलाइन मीडिया में ऑनलाइन मीडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको ब्रांडिंग बताया था, मैंने बोला था इंटरनेट एड्रेसेस पे लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए KCMT का URL लिखा हुआ है यहाँ पे। Am I clear? और पोजीशनिंग की बात आती है, अगर कॉलेज लिखा है, नीचे टॉप एजुकेशन ब्रांड लिखा है, तो जब लोग बड़ा बड़ा 2 कंटेंट पढ़ते हैं एक साथ, तो वो उसको सिनोनिम मानते हैं। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक याद आ जाएगा। मैं ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है ना? ओके। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आती है आप लोगों को? Yes, sir. Fine. Coming back to the same PowerPoint presentation जिस पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, हम बात करूंगा। ओके, रीपोजिशनिंग की मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू और मॉडिफाइड ब्रांड, कंपनी और प्रोडक्ट पोजीशन, राइट। रीपोजिशनिंग का मतलब है कि दोबारा से एक इमेज बिल्ड करना जो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन को लेके आएगी और कस्टमर के माइंड में इमेज को चेंज करेगी, कन्वर्ट करेगी। इज दिस क्लियर? ओके। Yes, sir. Yes, sir. A company may enhance or modify a position based on market feedback. देखो अगेन ये लाइन जो है बिल्कुल KCMT से रिलेट कर रही है कि विनय सर का जो कंसर्न था वो 17 सालों के एक्सपीरियंस को देखते हुए, मार्केट के फीडबैक को देखते हुए था कि ये 3 प्रॉब्लम आ रही हैं, तभी तो हमने कंपनी की रीपोजिशनिंग करने की कोशिश करी, राइट, और लोगो चेंज करने की कोशिश करी। क्लियर है? राइट। Yes, sir. So I'm definitely planning कि whenever it will be possible, I'll definitely try my level best to get this somewhere written कि the new logo was changed by me.
at least it will be an achievement for me to show in some other organization. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अदर एग्जांपल्स की बात करें तो काफी बार क्या होता है, या तो पोजीशनिंग की बात आती है। आज की डेट में आप देखो अल्टो का नया मॉडल आया है। Yes, sir. Yes, sir. अब ऑल्टो का जब नया मॉडल आ गया, सेंट्रो का भी आया इवन, तो पुराने Yes, sir. मॉडल की जो कार थी वो कुछ इसी तरीके की शेप में आती थी, इसी तरीके का उनका डिजाइन पैटर्न था, लेकिन अब बदल गया है, उसका और स्टाइलिश लुक आ गया है, तो उसके बारे में उस तरह से रिपोजिशनिंग हुई। पहले माइक्रोमैक्स जो फोन था, कीपैड फोन्स आते थे, तो उसकी एडवर्टाइजिंग उस तरह से होती थी। टच फोन्स आए तो फिर रिपोजिशनिंग करनी पड़ी उनको। क्लियर? नेक्स्ट कम बेस्ड ऑन टफनेस एंड एंड्योरेंस। काफी बार क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने अभी वो एक लेटेस्ट ऐड देखा होगा, एक कार है जिसका ऐड आता है और एंड में ना उसके चारों तरफ भेड़िए बैठे होते हैं। सर किया सोनेट, किया सोनेट, किया सोनेट। राइट राइट Yes, राइट। sir. आप देखो अल्टीमेटली वो क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, दे वांट टू शोकेस अ यूनिक इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। मुझे भी वो क्यों याद है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। राइट, इवन एक कार के ऐड में दिखाया कि उस कार के बोनेट पे आके शेर बैठ जाता है। राइट, Yes, sir. और वो कुछ दिखाने की कोशिश करी गई है, द चॉइस ऑफ रॉयल्स। जो लोग अपने आप को थोड़ा उस टाइप से समझते हैं, दे शुड बाय दैट कार, है ना। यस सर। और Yes, sir. रॉयल एनफील्ड के हमेशा उसी टाइप से ऐड आते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो कि टीनेजर्स ऐसे हैं या यंग एज पीपल ऐसे हैं जिनका पैशन है कि उनको बाइकिंग बहुत अच्छी लगती है, राइट, और हैवी बाइकिंग अच्छी लगती है, दे ऑलवेज गो फॉर रॉयल एनफील्ड्स। क्लियर? Yes, sir. हैवी शूज के बेसिस पे बात करें, वुडलैंड ने हमेशा अपनी एडवर्टाइजिंग उसी तरीके से करी है, पोजीशनिंग उसी तरीके से करी है, लेकिन आज की डेट में आप देखो वुडलैंड इज आल्सो कमिंग विद फॉर्मल शूज। Yes, फॉर्मल sir. शूज में भी आ रहा है, तो हमेशा से लेकिन वुडलैंड को किस बेसिस पे जाना गया है, हैवी शूज के लिए, तो उसको रिपोजिशनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ राइट, द सेम केस इज विद रेड चीफ आल्सो, ली कूपर आल्सो। राइट, बेस्ड ऑन सर बजाज के साथ भी यही है, जो बाइक्स के लिए बजाज- करते हैं वो लोग। एग्जैक्टली राइट। अब आप देखो जो डेयरी मिल्क का था, डेयरी मिल्क का तो रिपोजिशनिंग आप केसेस बहुत बार हुए हैं। जो Yes, पहले ही sir. आप देख सकते हो जो रैपर बना हुआ है, इस Yes, Yes, रैपर sir. में पहले ये 2 ग्लास ऑफ मिल्क नहीं होते थे, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उसके Yes, बाद sir. 2 ग्लास ऐड कर दिया, राइट। Yes, sir. ओके, ऐसे आपने देखो नेस्कैफे, नेस्कैफे की मैं बात करूं, आजकल आप देखते हो नेस्कैफे का एक नया कैंपेन चल रहा है, दिन भर दौड़ना है, दिन भर भागना है, राइट। Yes, sir. स्टार्ट योर डे विद नेस्कैफे। उन्होंने पोजीशनिंग देखो क्या करने की कोशिश करी है कि नेस्कैफे लोग जनरली कब प्रेफर करते थे, एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ टी, तो उसी तरीके से उन्होंने पोजीशनिंग करने की कोशिश करी। वो चाहते हैं कि लोग जो चाय है उसको छोड़कर नेस्कैफे पीना शुरू कर दें, इसलिए उन्होंने प्री पोजीशन करा प्रोडक्ट को, स्टार्ट योर डे विद नेस्कैफे। लोगों का दिन किससे शुरू होता है? Nescafe. सर बेसिकली चाय से। होता थोड़ी ना है, लोगों का चाय दिन से। चाय से शुरू होता है, Yes, sir. चाय से। राइट। लेकिन उस चाय की जगह Yes, को sir. नेस्कैफे बिठाने के लिए नेस्कैफे कंपनी ने इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट मार्केट में लाया। Yes, sir. Am I clear? Yes, राइट। sir. इसी Yes, sir. केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स हैं, आजकल देखो हर ऐड में कॉर्नफ्लेक्स में यही दिखाया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सुबह उठकर उनको कॉर्नफ्लेक्स दीजिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, Yes, राइट। sir. तो नाश्ते की जगह को रिप्लेस करने की कोशिश करी उन्होंने, रिपोजिशन करने की कोशिश करी। प्लेन मिल्क को भी जो है उसमें बताया है कि प्लेन मिल्क की जगह ले तो उसको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली राइट। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट इस तरह से अपने आप को रिपोजिशन किया। कॉम्प्लेन ने देखो, पहले वो कॉम्प्लेन बात करता था केवल और केवल हाइट पे, उन्होंने बाद में रिपोजिशन करके हाइट प्लस उनका जो कंप्लीट प्लान फूड है, आप ध्यान से देखो इसके पैकेट पे लिखा हुआ भी है, ये नीचे तो हाइट के बारे में दिखा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट प्लान्ड फूड, यानी कि बच्चे को इससे प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो भी मिल रहा है। ये लिखा हुआ ऊपर उन्होंने कंप्लीट प्लान्ड फूड ड्रिंक, फूड इन अ ड्रिंक, यानी कि बच्चे को आप कॉम्प्लेन दो, उसका प्रॉपर फूडिंग भी हो गई और प्लस आपका हाइट भी बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर है? राइट। बहुत टिपिकल था शुगर फ्री के लिए मार्केट में अपने आप को शुगर का सब्स्टिट्यूट बनाना, उन्हें रिपोजिशन करना पड़ा। आज की डेट में वो चाहते हैं कि लोग चीनी छोड़ दें, शुगर फ्री इस्तेमाल करें पूरी तरह से।
आप इमेजिन करो अगर लोग चीनी पूरी तरीके से छोड़ देंगे, शुगर फ्री पे आ जाएंगे, तो शुगर फ्री का मार्केट शेयर कितना वाइड है। अगर एक महीने की आप बात करो इजीली, जिसके घर में 4 लोग भी हैं, वहां पे 5 किलो चीनी जाती है बहुत आसानी से, राइट। और बड़ी फैमिली में 10 किलो चीनी का कंजम्पशन है ना। कुछ ना कुछ बनना है, कभी स्वीट्स में कुछ बनना है, नॉर्मल टी बननी है, तो इतना जाता है। यस सर। राइट। मैं एक बनियों की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 10 किलो बहुत आम बात है, जाता ही जाता है। हमें वो चाय फीकी पसंद नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लियर है ना? राइट। देखो मानसी एग्री कर रही है बिकॉज शी इज आल्सो एडिंग वैश ना, तो उसको बनियों वाली फैमिली का आइडिया है। ठीक है, ओके। तो मुझे तो लिटरली मतलब मैं कभी कभी चाय पीता हूँ किसी और जगह की, और वो लोग बिल्कुल ऐसा लगता है चीनी डाली ही नहीं है उन्होंने, तो मैं मना कर देता हूँ कि मेरे को नहीं पीनी है। ठीक है, आई थिंक रीपोजिशनिंग के बारे में अलग अलग बेसिस पे स्ट्रैटेजीज मैंने आपको डिस्कस करी कि किन किन बेसिस पे लोग रीपोजिशन करते हैं। एम आई क्लियर? Yes, sir. एंड बेस्ड ऑन द सेम थिंग हमने रीपोजिशनिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में आएगा, लिख पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज एडवाइस करूंगा, आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं इस यूनिट 2 के, ठीक है, उनको मैं अपलोड कर दूं आपके टीचर्स ऐप पर, आपकी केसीएम की ऐप पर आएगी, और आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो पूछ लीजिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट आल्सो, जस्ट लाइक एन असाइनमेंट। एम आई क्लियर? ओके सर। Okay, sir. Okay, just give me one moment. I'm adding the snapshot to your class group. सर इसकी पीडीएफ भी चाहिए। हाँ डेफिनेटली, जितने भी पीपीटीज भी मैंने इवन पढ़ाई हैं आपको, राइट, जितना कंटेंट पीपीटी से कवर किया है मैंने, वो पीपीटी भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, प्लस आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको वीडियो फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएंगे। क्लियर? उनको पढ़िए, उनको ध्यान से रिवाइज करिए और अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करिए। क्लियर? मुझे लगता है कि अगर नीडेड हुआ तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। वील हैव वन मोर लेक्चर ऑन दिस यूनिट जिसमें हम एटलीस्ट आपका रिवीजन कर लें। एंड आई वांट अगेन 3 न्यू स्टूडेंट्स टू गिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे जैसे लास्ट में हमने स्मृति का प्रेजेंटेशन हुआ था। एम आई क्लियर है? यस सर। राइट। सो आई वांट 3 स्टूडेंट्स टू गिव वॉलंटियर प्रेजेंटेशन। मेक श्योर मुझे नाम मिल जाए आज तक, मैं फिर टॉपिक अलॉट कर दूंगा आप लोगों को। क्लियर? Okay, sir. ओके सर। Fine. I've taken snapshots also, and this much from my side. We'll be meeting in the next class. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, sir. सर।